Hey guys, today I want to discuss about Krebs cycle, or what you say TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle. What is tricarboxylic acid? It is basically a TCA or Krebs cycle. Okay, tricarboxylic acid, like this. It is also called citric acid cycle because the substrate or the first product that is formed is citric acid. Now, if you want to know the structure of citric acid, it can be written as, firstly you have to draw 3 carbons, and then okay, now how you will write the formula of citric acid? See, CH2 CH2 CH2. Now why I took 3 carbons as citric acid? You can say citric acid C is third in the alphabet ABC, so 3 carbon in the main chain. Now you have to write COH because it is an acid. You will write CO negative. You can remove the H positive. We can write it as citrate. Then when H positive is removed, then it will be called as citrate. Same with second. Okay, and same with the third carbon. Now you have to make some changes in it. You have to take OH and H because they have to show isomerism to make isocitrate. So you will take here OH and here H is already present. You can write it as like this. Okay, how many steps does citric acid cycle or Krebs cycle take? Is 8 steps. Okay, it is used in the cellular respiration. So firstly, pyruvic acid or pyruvate is formed in the cytoplasm of the cell cytoplasm. Okay, pyruvic acid, it is formed from glucose by glycolysis. Okay, because glucose are formed in units and units, so it is called glycogen. So it is called glycolysis. Then pyruvate is formed. Glucose is 6 carbon compound. Pyruvate is 3 carbon compound. This is called as link reaction. Okay, because it link pyruvate to the TC or the Krebs cycle. Now let's see how the citric acid cycle starts. The first compound is what you take in citric acid cycle is, first let me show you the structure of pyruvate or pyruvic acid. Now how you will learn the formula of pyruvic acid or pyruvate. Let me write this. You can see the Cu can be written as C and O, like it is C and O. You have to learn when this की एक कार्बन प्रेजेंट है उस पे एक ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन द टॉप.
ketonic group present. पायरुवेट में एक कार्बन प्रेजेंट होता है CH3CO and if it is acid then what you will write. acid का फॉर्मूला होता है COOH. okay, so it will be written as COH at last. OH H मैंने हटा दिया क्योंकि ये पायरुवेट है, तो जिसमें 8 आ जाएगा पीछे उसमें से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा. ओके नाउ पायरुवेट में हम ऐड कराएंगे हम एसिटाइल कोएंजाइम A एंड NAD पॉजिटिव चेंज होगा NADH प्लस H पॉजिटिव में. नाउ NAD जो स्पीसीज है वो H लेगी. H मीन्स पूरा H विद इट्स हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस भी आएगा उसमें और इलेक्ट्रॉन भी आएगा. बट इन दिस इट एक ओनली H positive and the electron is excluded from it. Okay, that's why it is formed as NADH positive and H positive, or you can simply write it as NADH. okay, with addition of coenzyme it is pyruvic acid को हमने अभी हम पायरुविक एसिड को COH लिख देते हैं. तो ये NAD पॉजिटिव H पॉजिटिव कहाँ से लेगा? पायरुविक एसिड से. सो ये फॉर्म हो जाएगा NADH. ओके, लाइक दिस. ये रहा. अब यहाँ पे हम यहाँ पे O नेगेटिव रह जाएगा तो हम कोएंजाइम ऐड कर सकते हैं बाहर से. तो विद द एडिशन ऑफ कोएंजाइम A वी कैन राइट इट एज और ये कोएंजाइम हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से मिलेगा. फैटी एसिड और कैसा ऑक्सीडेशन हुआ? बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड में. अब ये कोएंजाइम में कहाँ लगेगा? CH3COO पायरुविक और एसिड में CO नेगेटिव CA. यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल का भी रिलीज होगा साथ में, तो मतलब CO2 मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाएगा ये वाला साथ में. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है. तो इसको हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट विल बी काइंड ऑफ अनस्टेबल. सो कोएंजाइम A इस पे एक्ट करेगा. इट इज़ nucleophilic species and it is negative. Now it can be asked how it is negatively charged.
because it is an enzyme and it has phosphate group present in it. किसी भी enzyme में is made up of amino acids and a phosphate group is present in it. PO4, PO3 negative, 2 negative, like this is present. इसका पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, पर it has POP linkage as well as PO3 to negative. So PO and O negative, O negative, like this, and a chain is present on the side and another chain on this side. So basically negative charge तो है ना, तो that's why it will act on the positive affair. So you can form CH3 and COA. आएगा SCOA. Now we have formed the acetyl coenzyme A. It is the acetyl group and it is coenzyme. Acetyl group, what is acetyl group? Which is formed from acetic acid CH3COH. So एक हाइड्रोजन हटा हुआ है as well as ऑक्सीजन भी हटा हुआ है, तो बेसिकली OH की जगह पे ये वाला ग्रुप आया हुआ है SCOA. ऑक्सीजन को सल्फर ने रिप्लेस किया हुआ है और यहाँ पे कोएंजाइम A लगा हुआ है. बेसिकली इस साइड पे लास्ट में SH है कोएंजाइम A के, तो वो यही S है और ये पूरी चेन है कोएंजाइम A की. नाउ सी एसिटाइल कोएंजाइम में किससे एक्ट करेगा? सबसे पहला रिएक्टेंट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. So first reactant is oxaloacetic acid. Now you have to learn the structure of it. Oxaloacetic acid, it is a 4-carbon compound. Acetyl coenzyme A is a 2-carbon compound. And यहाँ पे क्या क्या था? पायरुविक एसिड 4 कार्बन था और ये अपना आ गया है 2 कार्बन का कंपाउंड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितना कार्बन का होगा? 4 कार्बन का. और कार्बन ड्रॉ कर लो अपने, 1 2 3 4 कार्बन हो गए. ऑक्सैलो एसिटेट बनाना है तो एसिटिक ऑक्सैलो एसिटेट, तो एसिटिक एसिड होगा. कर दिया मैंने. मैं बहुत गड़बड़ कर दिया. बेसिकली हम कैसे याद करेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमें करना होगा तो इसमें मतलब एसिटिक एसिड तो होगा ही, नहीं तो एसिड होगा. दैट विल बी दीज 2 ग्रुप COOH. ना ऑक्सैलो है मतलब एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और 4 कार्बन का है तो एक CH2 प्रेजेंट होगा. तो ऐसे हम याद कर सकते हैं. एक
oxaloacetic acid and acetyl क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ऊपर, यहाँ से देख सकते हो आप। तो मैं लिख सकती हूँ वैसे, क्या बनेगा, CH2 यहाँ पे छोड़ देते हैं इसे, 3 कार्बन होंगे तो पता है, पे OH होगा, CO नेगेटिव होगा, CO नेगेटिव सब पे होगा ये तो, क्योंकि एसिड है तो आएगा। और यहाँ पे H लिख सकते हैं, O नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये क्या बन गया अपना, सिट्रिक एसिड। और इसमें कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी, सिंथेस। जो सिंथेस होती है उसमें हमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है। अगर टेज आ जाएगा लास्ट में तो ATP की रिक्वायरमेंट होती है हमें, और सिंथेस में कोई भी ATP का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये अपना बन गया सिट्रेट। अब इसको हम आइसोसिट्रेट में चेंज करेंगे बाय द एंजाइम कॉल्ड एज अकोनिटेज। ओके, now aconitase enzyme is used to change citrate into isocitrate। अब मतलब हम चेंज कैसे करेंगे, ये हमें आइसोमर बनाना है इसका बस। तो क्या करेंगे, हम H को यहाँ ले जाएंगे, OH को यहाँ ले जाएंगे, that would be an isomer। we can write CH2 CO O negative, CH2 CH OH CO O negative and CH HCO O negative। So it would be called isocitrate and it is the isomer of the citrate। एंड कौन सी एंजाइम ने एक्ट किया है, अकोनिटेज। ओके, अब इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया क्या है, मिनट, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें क्या चेंज करना था, OH एंड H को चेंज करना था यहाँ में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा H और ये हो जाएगा OH, तो इसका मतलब ये आइसोसिट्रेट हो गया। ओके, अब आइसोसिट्रेट से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन रिमूव क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास NAD प्रेजेंट है, तो NAD यहाँ से बना लेगा NAD पॉजिटिव, क्या बना लेगा यहाँ से NADH would be formed। so it is an energy molecule। तो एनर्जी तो फॉर्म होती है रेस्पिरेशन में। ओके, so it is NADH and how I will write this and और CO2 would be removed। पहला CO2 कहाँ रिमूव हुआ था, सबसे पहले उसमें रिएक्शन में जब हमें कोएंजाइम A ऐड किया था हमने, तब हमने CO2 रिमूव कर दिया था ताकि कोएंजाइम A को ऐड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 रिमूव क्यों कर रहे हैं हम, उसका मतलब है हम कोई प्रोडक्ट नया बना रहे हैं तभी हमें ये रिमूव करना है। एंड इसको हम कह सकते हैं, इट वुड बी कॉल्ड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि इसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस ऐसे लिख सकते हो।
एंड CO2 इज रिमूव, तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटरेट. व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ दिस? देखो, ग्लूटरेट जब भी आपको लिखना होगा तो ग्लूटरेट, तो इसको याद रखो GLU से कि 3 कार्बन होंगे जो मेन होंगे. ग्लू होती है ना, तो ऐसे याद रखो ग्लूटरेट C. अब CH2 तो सब में आएगा CH2. अब देखो ग्लूटरेट है मतलब ग्लूटरिक एसिड होगा ये. तो एसिड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? COH. और ऐसे लास्ट कार्बन पे भी हम लगा देंगे COH. ठीक है. और ये U से हम क्या फॉर्म करेंगे? अगेन मैंने बताया था ना, CO ऐसे लगा देंगे. अगर U हमें ऐसे दिखेगा, पहले हमें कहाँ दिखा था ये? पायरुवेट में. तो मैंने बताया था आपको पायरुविक एसिड में 4 कार्बन होंगे. ठीक है, 1 2 3. सॉरी, यहाँ पे 3 कार्बन आएगा. सॉरी, तो इसमें 3 कार्बन है. सो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला? CH3COH. ये तो एसिड का फॉर्मूला है. ये CO क्यों लिखा था? U था क्योंकि यहाँ. ठीक है, ऐसे यहाँ पे ग्लूटरेट में हम CO लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे U है. तो हमने ग्लूटरेट में 3 कार्बन लगाए. फिर यहाँ पे एसिड है तो CO लगाया. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? U है, तो हम यहाँ पे O लगाएंगे. इस वाले कार्बन पे ही, लास्ट वाले कार्बन पे O आ जाएगा. और ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है. तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा कीटोग्लूटरेट. अब यहाँ से देखते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ से ये पोजीशन होगी अल्फा, और ये बीटा, ये गामा, और ऐसे. अब यहाँ से क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये लॉन्ग चेन हो जाएगी. फंक्शनल ग्रुप जहाँ पास होता है हम वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन पे है, तो ये पास में है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट माना है. यहाँ से देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा फंक्शनल ग्रुप. पर फंक्शनल ग्रुप जहाँ सबसे पास में होता है, नियर होता है साइड चेन के, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, तो उसे हम फर्स्ट पोजीशन मानेंगे. अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड या फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट. अब यहाँ से भी एक CO2 माइनस होगा. और याद रखो जहाँ पे भी CO2 माइनस हो रहा है वहाँ पे NADH भी फॉर्म हो रहा है. एनर्जी भी रिलीज़ होगी और CO2 भी साथ में रिलीज़ हो रहा है. तो यहाँ पे पिछले स्टेप में भी हुआ था ये, और इस वाले में भी होगा. आइसोसिट्रेट, सिट्रेट से याद कर सकते हो, यहाँ पे CO2 होगा तो NAD ये कॉमन है.